Coulomb's law. Now, up till we have studied that there is a certain attraction or repulsion between the charges. Okay, and what type of attraction is there, or when this attraction is produced, when this repulsion is produced, that only we have studied. Okay, so how the charge is produced on body, that we have studied, but how much force is there between the two charges, that we have not yet studied. Okay, numerical part we have not yet started. अभी कुलोम्स लॉ में क्या किया है, कुलोम्स लॉ में दो चार्जेस में कितना फोर्स रहता है, ओके, ये एक्सप्लेन किया है, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस एट द रेस्ट. ओके, अभी कुलोम्स लॉ क्या है देखिए, the electrostatic force of attraction or repulsion between two point charges at the rest. Okay, तो यहाँ पे important thing क्या है, यहाँ पे दो charges जो है वो point charges है, point charges. So Coulomb's law is applicable to only point charges. This is not applicable to charged bodies. This is the very important thing. So Coulomb's law is stated for the point charges, and second important thing is that it is related to the charges at rest. चार्जेस एट रेस्ट, मतलब अगर पॉइंट चार्जेस है और चार्जेस एट रेस्ट है, तभी हम क्या कर सकते हैं, कुलोम्स लॉ जो है वो ओबे कर सकते हैं, अदरवाइज कुलोम्स लॉ इज नॉट ओबेड. मतलब पॉइंट चार्जेस के बजाय यहाँ पे अगर सपोज चार्ज्ड बॉडीज है, ओके, देयर आर चार्ज बॉडीज एंड चार्ज रेस्ट पर अगर नहीं है, इफ दिस चार्जेस आर मूविंग, इन दैट केस this Coulomb's law is not applicable. Okay, so Coulomb's law क्या है देखिए, the electrostatic force of attraction or repulsion, electrostatic force of attraction or repulsion between two point charges at the rest, okay, 2 point charges at the rest is directly proportional to क्या है, product of magnitude of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. Okay, so दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स रहेगा, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन रहेगा, वो पहला तो क्या रहेगा, उन दोनों चार्जेस का जो प्रोडक्ट है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, एंड सेकंड थिंग इज दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, एंड देयरफॉर I can write F is directly proportional to Q1 Q2 divided by R square. Okay, अभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकालने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट डालना पड़ेगा. तो इन एसआई सिस्टम क्या होता है देखिए, इन एसआई सिस्टम फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. ओके, वेयर K कितना रहेगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट रहता है. ओके, K is equal to 1/4 pi epsilon naught if two charges are placed in vacuum. Okay, और 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू कितनी रहती है, it is 9 into 10⁹ रहती है. So force between two charges is 9 into 10⁹ Q1 Q2 by R square. So this formula is only related to the vacuum. Okay, and here what is this epsilon naught? Epsilon naught is nothing but permittivity. ओके, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं. इट इज परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम. ओके, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम बोलते हैं. एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या देता है, 8.85 into 10⁻⁻12. ओके, 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. दिस इज द एसआई यूनिट. सो एसआई सिस्टम में F इज इक्वल टू क्या रहता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर रहता है, और K का वैल्यू कितना रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा, या फिर 9 into 10⁻9 रहेगा. सीजीएस सिस्टम में क्या रहेगा देखिए, इन सीजीएस सिस्टम ओके, इन सीजीएस सिस्टम दिस K इज इक्वल टू क्या रहता है, 1 रहता है, एंड फोर्स का फॉर्मूला आता है Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. Okay, so SI system में force between two charges is given by formula K Q1 Q2 by R square, where K is equal to 1/4 pi epsilon naught
and for 1/4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10⁹ एंड सीजीएस सिस्टम में यहाँ पे कांस्टेंट जो रहता है वो 1 ही रहता है एंड फोर्स इन डाइन इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे Q1 Q2 की कौन से यूनिट में होने चाहिए? ESU में होने चाहिए, ESU, ठीक है। एंड डिस्टेंस किस में होना चाहिए? सेंटीमीटर में होना चाहिए। ओके, सो दीज आर द टू फॉर्मूले which gives the force between the two charges, okay, which are at the rest. So that is the Coulomb's law. So once again ध्यान में रखिए, SI सिस्टम में फॉर्मूला रहता है 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square एंड CGS सिस्टम में रहता है Q1 Q2 by just R square. ओके, यहाँ पे लिखता हूं Q1 and Q2 are in ESU, that is electrostatic unit, या फिर फ्रैंकलिन में रहेगा. R will be in centimeter and therefore we get the force in dyne. Okay, or by comparing these two formula you can get the conversion factor between Coulomb and ESU. Coulomb and ESU का मतलब फॉर्मूला जो है वो कैसा आता है? बाय कंपेयरिंग दिस टू फॉर्मूले, ठीक है। और उसके बाद 1 ESU कितना आता है? 1 ESU is equal to 1 divided by 3 into 10⁹ Coulomb. That is 1 electrostatic unit of the charge. Okay. अभी ये Coulomb's law हमें वेक्टर फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा. वेक्टर फॉर्म, Coulomb's law in vector form, that is also a very important thing. Coulomb's law in vector form. Okay, let's see how to write Coulomb's law in vector form. अभी कोई भी फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखना है मतलब क्या करना है? उसका मैग्नीट्यूड लिखना है और डायरेक्शन लिखना है. ओके, अभी देखिए, suppose here there is a charge plus Q1 and here there is a charge plus Q2. This is charge number 1, this is charge number 2, and these two charges are suppose separated by distance r. ये दो चार्जेस जो है वो r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ठीक है। तो पहले तो मैग्नेट, यहां पे डायरेक्शन लिखते हैं R12 कैप डायरेक्शन. R12 कैप डायरेक्शन कैसा रहेगा? ओके, फ्रॉम पॉइंट 1 to पॉइंट 2 इन दिस डायरेक्शन रहेगा. R122 डायरेक्शन मतलब अकॉर्डिंग टू अबव डायग्राम इट विल बी लाइक दिस, R12 कैप का डायरेक्शन. एंड R21 कैप मतलब डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं हम? यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, पता है ना, यूनिट वेक्टर. सो R21 कैप, 21 मतलब 2 to 1 का डायरेक्शन रहेगा. सो फ्रॉम पॉइंट 2 to पॉइंट 1 ऐसा रहेगा, ठीक है। अभी देखिए वेक्टर फॉर्म में मैं लिखने जा रहा हूं Coulomb's law. फोर्स, पहले फोर्स ऑन चार्ज 1 लिखते हैं. फोर्स ऑन चार्ज 1 exerted by चार्ज 2. अभी देखिए 1 पर एक्सर्ट होने वाला फोर्स जो है वो कैसा रहेगा? क्योंकि दोनों सिमिलर चार्जेस है, दोनों सिमिलर चार्जेस है ना, तो यहाँ पे रिपल्शन रहेगा लाइक दिस. इसको क्या बोलूंगा मैं? फोर्स ऑन 1 exerted by 2, F12 बार. ओके, फोर्स 1-2 बार मतलब फोर्स ऑन 1 पे एक्ट होने वाला फोर्स रिपल्सिव रहेगा. रिपल्सिव मतलब ये फोर्स 1 को टूवर्ड्स लेफ्ट ढकेलेगा, टूवर्ड्स लेफ्ट. सो F12 बार इस तरह से रहेगा, F12 बार. यहां पे हमेशा ध्यान में रखिए F12 का मीनिंग
ये कैसे ध्यान में रखने हैं, ऑन बाय वर्ड ध्यान में रखो, ऑन बाय, ओके, ऑन बाय मतलब अगर लिखा एफ एक्स वाई तो इसका मीनिंग क्या होता है, फोर्स ऑन एक्स एक्सर्टेड बाय वाई, एफ वाई एक्स मतलब फोर्स ऑन वाई एक्सर्टेड बाय एक्स, इसका इस तरह से मीनिंग लेना है, ऑन बाय वर्ड ध्यान में रखो। फॉर एग्जाम्पल F12 मतलब फोर्स ऑन वन एक्सर्टेड बाय टू, F21 मतलब फोर्स ऑन टू एक्सर्टेड बाय वन, F43, F43 का मतलब क्या रहेगा, हमेशा कैसे रीड करना है उसको, F43 को दैट इज फोर्स ऑन फोर एक्सर्टेड बाय चार्ज थर्ड, इस तरह से, ठीक है। ये सीक्वेंस हमेशा ऐसा ही रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ये ऑन बाय वर्ड ही ध्यान में रखना है। अभी फोर्स ऑन वन एक्सर्टेड बाय टू F12 बार, तो इसका पहले वेक्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब क्या करना है, मैग्नीट्यूड लिखना है और डायरेक्शन लिखना है। पहले मैग्नीट्यूड लिखता हूं, 1 और 2 में इन दो चार्जेस में फोर्स कितना रहेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर रहेगा। और उसका डायरेक्शन अभी देखिए, F12 बार का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है, एंड टुवर्ड्स लेफ्ट कौन सा डायरेक्शन है, टू R2 21 कैप है, 21 कैप, सो डायरेक्शन भी इधर मैंने लिख दिया। सो इन दिस वे इट इज रिटन इन वेक्टर फॉर्म, ओके, क्योंकि मैग्नीट्यूड लिखना है और डायरेक्शन लिखना है। अभी यूनिट वेक्टर में आपने देखा होगा 1/4πε0 as it is, Q1 Q2 by R square as it is। यूनिट वेक्टर कैसे निकलते हैं, दैट इज R21 बार डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर कैसे निकलते हैं, द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ना। सो देयरफॉर दिस फॉर्मूला कैन आल्सो बी रिटन इन दिस फॉर्म, दैट इज F12 बार इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R cube, R square into R cube into R21 bar, ओके। सो देखिए फोर्स ऑन वन एक्सर्टेड बाय टू, कैप में लिखना है तो नीचे आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और बार में लिखना है तो नीचे आर क्यूब लिखना पड़ेगा। आर क्यूब क्यों आता है पता चला क्या अभी, क्योंकि यूनिट वेक्टर कैसे निकलते हैं, वेक्टर में हमने पढ़ा है यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पे ऊपर वेक्टर लिखा तो नीचे और एक आर आ जाएगा, उसके वजह से वो क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। सो इन दिस वे देयर इज अ कूलोम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये हो गया चार्ज वन का, ठीक है, दिस इज फॉर चार्ज फोर्स ऑन चार्ज वन एक्सर्टेड बाय टू। सिमिलरली अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, फोर्स ऑन चार्ज टू एक्सर्टेड बाय चार्ज वन, ओके। अभी देखिए सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज टू exerted by चार्ज वन, मतलब इसको क्या लिखूंगा मैं, ऑन बाय ना, ऑन टू बाय वन। पहले मैग्नीट्यूड लिखूंगा, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अभी डायरेक्शन लिखूंगा, अभी टू पर भी रिपल्सिव फोर्स ही रहेगा ना, क्योंकि दोनों सिमिलर चार्जेस है। टू पर रिपल्सिव फोर्स रहेगा मतलब टूवर्ड्स राइट फोर्स रहेगा, दैट इज F21 बार, एंड टूवर्ड्स राइट मतलब डायरेक्शन कौन सा है, R12 का डायरेक्शन है या फिर R21 कैप का डायरेक्शन है, ये सिमिलर टू दिस डायरेक्शन है ना, एंड देयरफॉर इट इज R12 कैप, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। एंड वंस अगेन R12 कैप का क्या कर सकता हूं, R12 बार डिवाइडेड बाय R लिख सकता हूं, एंड देयरफॉर दिस कैन हैपन लाइक दिस 1/4πε0 Q1 Q2 by R cube R12 bar, okay. So in this way Coulomb's law is written in vector form, okay.
So any doubt in this case? Any doubt? अभी यहाँ पे देखिए फोर्स ऑन चार्ज 1 एंड फोर्स ऑन चार्ज 2 दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r² है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। मतलब दोनों चार्जेस पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स, ओनली उनका डायरेक्शन क्या रहता है, अपोजिट रहता है। सो दीज टू फोर्सेस फॉर्म an action reaction pair because these are the two forces which are equal in magnitude and exactly opposite in direction, and therefore in Coulomb's law the two forces which are acting there on the two charges, this forms action reaction pair. Okay, so Coulomb's law can consist of two forces which forms action reaction pair. This is one important sentence we can write here. Coulomb's forces forms action reaction pairs, but they don't cancel each other. Cancel each other. लेकिन वो एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे दो फोर्सेस है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। अगर आपको पूछा व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर जीरो नहीं आता है। ओके, दे डू नॉट कैंसल आउट ईच अदर, क्योंकि दो फोर्सेस इक्वल है, अपोजिट है। कैंसल कब करते हैं, जब वो एक ही बॉडी पे एक्ट होते हैं तब। अभी ये दो फोर्सेस कैसे है, देखिए इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, लेकिन एक फोर्स बॉडी 1 पे एक्ट होता है तो दूसरा फोर्स बॉडी 2 पे एक्ट होता है। These two forces are not acting on the same body and therefore they do not cancel out each other. They don't cancel each other. ठीक है, मतलब यहां पे अगर मैंने ऐसा एक क्वेश्चन अभी पूछा, क्वेश्चन क्या है, टू चार्जेस आर देयर। टू चार्जेस क्या है, पहला है 5 कूलम एंड सेकंड इज 10 कूलम। ओके, अभी फोर्स ऑन चार्ज 1 F1 है। ओके, सपोज फोर्स ऑन चार्ज 5 कूलम इज F1 है। मतलब 5 कूलम पे एक्ट होने वाला फोर्स, मतलब 10 कूलम 5 कूलम पे फोर्स एक्ट करेगा ना, वो कितना है, F1 है। एंड ऑन चार्ज 10 कूलम, चार्ज 10 कूलम फोर्स कितना है, F2 है। तो यहां पे F1 बाय F2 कितना आएगा, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, 5 कूलम पे एक्ट होने वाला चार्ज, 5 कूलम चार्ज पर एक्ट होने वाला फोर्स F1 है और 10 कूलम चार्ज पे एक्ट होने वाला फोर्स F2 है। तो कौन किस पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, दो चार्जेस क्या है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड में है, तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए मुझे, व्हाट विल बी आंसर, F1 by F2 will be equal to, ऑप्शन से 1/2, 2/1, 1/1 एंड 1:3। तो आंसर क्या आ जाएगा, दो चार्जेस है 5 कूलम एंड 10 कूलम, दीज टू आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। तो 5 कूलम 10 कूलम पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा या फिर 10 कूलम 5 कूलम पे ज्यादा एक्सर्ट करेगा, क्या लगता है आपको, आंसर विल बी 1:1, 1/1, क्योंकि यहाँ पे हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में देखा है, फोर्स ऑन 1 कितना रहता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। फोर्स ऑन 2 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। मतलब दोनों पे फोर्स उतना ही रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है कूलम्स फोर्सेस फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, मतलब ये जो दो फोर्सेस है इक्वल इन मैग्नीट्यूड रहते हैं हमेशा, दीज टू आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ओके, चार्जेस अगर डिफरेंट भी है तो भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड ही रहेंगे।
नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट देखा है, कौन सा कांस्टेंट, उसको परमिटिविटी बोलते हैं, परमिटिविटी। तो परमिटिविटी के बारे में थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे। परमिटिविटी, ओके, सो परमिटिविटी इज डिनोटेड बाय epsilon. Permittivity is denoted by letter epsilon. It is a Greek alphabet, epsilon. अब ये permittivity क्या रहता है? Permittivity is nothing but it is the property of medium which opposes the electric field in that medium. Okay, so permittivity एक medium की property रहता है due to which it opposes the electric field in that medium. मतलब अगर परमिटिविटी बहुत ज्यादा है तो उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम रहेगा, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया, कोई भी चार्ज उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वही चार्ज हमने डिफरेंट मीडियम में रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम ज्यादा रहता है, सेम नहीं रहता है। मतलब वैक्यूम में रखा तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, दूसरे मीडियम में रखा तो थोड़ा सा कम इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, ठीक है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी क्या है, मीडियम का प्रॉपर्टी है विच अपोजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ड्यू टू विच व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम फोर्स थोड़ा ज्यादा रहेगा, वही चार्जेस उसी डिस्टेंस पे हमने मीडियम में रखे तो थोड़ा सा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कम रहेगा, ओके। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच अपोजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से परमिटिविटी की डेफिनेशन है, ओके। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम which opposes electric field. It is the property of medium which opposes the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करने वाली मीडियम की जो प्रॉपर्टी रहते हैं उसको हम परमिटिविटी बोलते हैं। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज ऑलवेज मैक्सिमम, ओके। परमिटिविटी of vacuum is maximum and permittivity of other medium is always less than maximum रहता है। permittivity of other medium क्या रहता है, less than vacuum. So permittivity of vacuum is maximum and permittivity of vacuum कितना रहता है, वैक्यूम का permittivity इप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं और वो रहता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ओके। हेनरी पर मीटर इसका यूनिट रहता है और इट इज कूलोम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर रहता है। यूनिट भी पता होना चाहिए, परमिटिविटी का यूनिट क्या रहता है, परमिटिविटी का यूनिट रहता है, इट इज सॉरी फैरेड पर मीटर रहता है, हेनरी पर मीटर नहीं, इट इज फैरेड पर मीटर, ओके। फैरेड पर मीटर रहता है या फिर कूलोम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर रहता है। परमिटिविटी ऑफ वाटर इज ओके, अदर मीडियम का परमिटिविटी, हाँ, there is one mistake here, I have made one mistake here and mistake is that वैक्यूम का परमिटिविटी सबसे कम रहता है, मिनिमम रहता है, मैक्सिमम नहीं, सॉरी, ओके। परमिटिविटी मिनिमम किसका रहता है, वैक्यूम का परमिटिविटी मिनिमम रहता है, ओके, रिमेंबर दिस। एंड अदर मीडियम का परमिटिविटी इससे ज्यादा रहता है। सो म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू नॉट, रिमेंबर दिस थिंग। म्यू मतलब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड म्यू नॉट मतलब क्या रहता है, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी ना, तो वैक्यूम का परमिटिविटी कम रहेगा मतलब फोर्स क्या रहेगा, ज्यादा। इसका मतलब क्या होता है, दैट इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, force between two charges
is maximum when placed in vacuum. Okay, this is absolutely correct. Okay, दो चार्जेस हम जब वैक्यूम में प्लेस करते हैं तो फोर्स मैक्सिमम रहता है, ठीक है, एंड वही चार्जेस, क्योंकि फोर्स एंड परमिटिविटी, बिकॉज इसका रीजन क्या आता है, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी. देखिए फॉर्मूला में F इज इक्वल टू 1/4πε0, तो वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम रहती है, तो वैक्यूम में दो चार्जेस का फोर्स क्या रहता है, ज्यादा रहता है, ठीक है. और मीडियम में जाने के बाद परमिटिविटी बढ़ती है, और परमिटिविटी बढ़ने के कारण क्या होता है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है. ओके, सो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज मैक्सिमम व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम. रीजन क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम क्या रहता है, मिनिमम रहता है. और उसका एसआई यूनिट क्या क्या है, देखिए फैराड पर मीटर है, या फिर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है. और इसका डायमेंशन भी आपको बताया मैंने, इसका डायमेंशन क्या रहता है, डायमेंशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. डायमेंशन कैसे ध्यान में रखना है, 1342. ओके, एंड इट इज माइनस माइनस प्लस प्लस. इस तरह से डायमेंशन ध्यान में रखना है आपको. 1342 नंबर ध्यान में रखना है. ये नंबर ही ध्यान में रख के ही आप क्या कर सकते हैं, परमिटिविटी का डायमेंशन ध्यान में रख सकते हैं. 1342. ओके, 1342, and it is minus minus plus plus. Remember this thing.